नमस्कार, मैं प्रियंका और शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। घटना की शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर बांकुड़ा पुलिस ने बाइक और टोटो चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर पुलिस ने अपनी काबिलियत साबित की। घटना की शिकायत दर्ज होने के केवल 24 घंटों के भीतर बांकुड़ा जिला पुलिस ने बाइक और टोटो चोरी के गिरोह का पर्दाफाश कर अपनी काबिलियत साबित कर दी। बांकुड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने शनिवार को सालतोड़ा थाना में प्रेस बैठक की। उन्होंने कहा कि सालतोड़ा थाना के एक व्यक्ति ने शुक्रवार दोपहर टोटो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान 40 बाइक और 10 टोटो बरामद किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले गंगाजल घाटी और सालतोड़ा थाना इलाके से 2 मोटरसाइकिल और 2 टोटो चोरी हुए थे। उसके बाद बांकुड़ा जिला पुलिस जांच में जुटी हुई थी। जांच में एक बड़ा रहस्य सामने आया। एक व्यक्ति कलन नाका चेकिंग पॉइंट पर पकड़ा गया था। उसका नाम लालटू उर्फ प्रबोध मंडल है। उससे पूछताछ करने पर ही इस चक्र के मुख्य सरगना का पता चला है। प्रबोध मंडल का घर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के जामुड़िया थाना क्षेत्र के बरुल गांव में है। वह एक अंतर जिला चोरी गिरोह में शामिल है। उन्होंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के 1.5 दिन के भीतर 40 बाइक और 10 टोटो बरामद किए गए। सालतोड़ा थाना पुलिस ने इलाके से 30 बाइक बरामद की और गंगाजल घाटी थाने की पुलिस ने वहां से 7 बाइक बरामद की। आपको बता दें कि पिछले 1.5 माह में बांकुड़ा जिला पुलिस ने 84 बाइक व 24 टोटो को बड़ी सफलता के साथ बरामद किया है। चोरी का मुख्य आरोपी प्रबोध मंडल है, जिसका नाम छातना और आसनसोल थाने में दर्ज किया गया है। आरोपी को शनिवार को बांकुड़ा जिला न्यायालय में भेजा गया। থার্সডে ছিল 18 তারিখ। বিগত 18 তারিখ বৃহস্পতিবার একটি কমপ্লেন আমাদের কাছে আসে, একটি ইনফরমেশান আসে যে সালতোয়া থেকে একটি টোটো চুরি হয়েছে। সেই টোটো চুরির আমরা হদিশ করতে গিয়ে, তার ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে আমরা গতকাল দুপুরে একটি আমাদের নাকাতে একজন ধরা পড়ে এবং তারপরে সেই নাকাতে ধরা পড়ার পরে যে ব্যক্তিটি ধরা পড়ে তার নাম লালটু, তার বাড়ি জামুড়িয়া থানার আন্ডারে আসানসোলে। তার কাছ থেকে আমরা প্রথমে তাদের টোটোটি উদ্ধার করি, যেখান থেকে কমপ্লেন এসেছিলো, এবং টোটো উদ্ধার করার পরে আমরা আজকে লাস্ট 1.5 ডেজে আমরা টোটাল রিকভারি করি অ্যারাউন্ড 40 বাইকস, 40টা মোটর বাইক এবং 10টি টোটো। এই 40টি মোটর বাইক এবং 10টি টোটোর মধ্যে 4টি টোটাল, 2টি বাইক ও 2টি টোটো আমাদের বাঁকুড়া জেলায়। বাকি আমরা সন্ধান করছি এদের আশপাশের পুরুলিয়া এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার এরিয়া থেকে ওদেরকে মনে হচ্ছে ওখান থেকে চুরি করা হচ্ছে। ফার্দার ডিটেলসটা আমরা আরও কালেক্ট করছি। আর এটা ছাড়া আমরা লাস্ট অ্যারাউন্ড 1.5 মান্থস, 1.5 মাসের মধ্যে টোটাল এই এরিয়াতে 84 নাম্বার অফ বাইকস এবং 24 নাম্বারস অফ টোটো উদ্ধার করলাম এই আজকের এই 40টি বাইক এবং তার সাথে 10টি টোটোকে সঙ্গে নিয়ে। ইন্টারেস্টিংলি একটা ঘটনা আমি আপনাকে শেয়ার করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যখন এই খবরটি হলো যে পুলিশ খুব তোড়জোড় করে আমরা 4টে স্পেশাল টিম বানিয়ে আমরা চারদিকে রেড করেছি। যখন আমরা চারদিকে স্পেশাল টিম বানিয়ে রেড করছি, তো কিছু এলাকার লোকজন যারা এই বাইকগুলিকে কিনেছিল সেকেন্ড হ্যান্ড হিসাবে, যারা জানতো না এটা চুরির বাইক, আমরা 5টা এমন বাইক ফেরত পেয়েছি যে 5টা বাইক আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তারা আমাদের হাতে প্রোভাইড করেছে, যে আমরা জানতাম না এটা চুরির বাইক। তো আমি আমার বাঁকুড়াবাসীকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি পুলিশের সাথে তারা কোঅপারেট করার জন্য, এবং আমরা আশা করছি এবং আপনার তরফ থেকে একটা মেসেজ দিতে চাইছি যে কোনো সময় যখন সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনবে দয়া করে কাগজপত্রগুলো দেখে নিন। আর পুলিশ যখন তার অ্যাকশন করে তো সেখানে আননেসারি কাউকে হ্যারাস আমরা করতে চাই না, কিন্তু যদি কেউ চুরির বাইক কেনে এবং সে যে আগে থেকে পুলিশকে সাথে যোগাযোগ না করে তাহলে কিন্তু লিগাল সমস্যা হতে পারে। এই যে বাইকগুলো উদ্ধার হচ্ছে, এটা কি শুধুমাত্র বাইকগুলো উদ্ধার হয়েছে প্রায় শালতোড়া এর আশপাশের যত, ইভেন পুরুলিয়া থেকে আমরা উদ্ধার করেছি, পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানা থেকে, আসানসোল দুর্গাপুর থেকে আমাদের কাছে খবর এসছে, তারা আমাদের কাছে বাইক দিয়ে গেছে। সো টোটাল এরিয়া থেকেই হয়েছে এটা ছাড়া এই 40টা বাইক হিসাব করতে গেলে এখানে 30টা হচ্ছে শালতোড়া থেকে, 7টা গঙ্গাজল ঘাটি, একটি করে ছাতনা, বেলিয়াতোড় এবং বাঁকুড়া, টোটাল 40টা। ডিভিশনটা ক্লিয়ার হলো? ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার, বাট যেটা আমাদের কাছে কমপ্লেন এসেছিলো সেটা আমরা একদিনের মধ্যে উদ্ধার করেছি। 24 ঘন্টার মধ্যে। আসামি কজনকে ধরেছে? আমরা আসামি মেন যে কিংপিন
লালটু, ভালো নাম প্রবোধ মণ্ডল, ও জামুরিয়ার বাসিন্দা। ওকে আমরা মুল্লু বর্ডার থেকে আমরা ওকে প্রেরণ করেছি এবং ওর কাছে ইন্টারেস্টিংলি দুটো মাস্টার কি পাওয়া গেছে। মাস্টার কি মানে যে কিগুলো দিয়ে ফ্যাব্রিকেটেড কি, নকল কি, যেগুলো দিয়ে লক বা মোটর বাইক এবং টোটোর লকগুলোকে ব্রেক করা যায়, তাদেরকে লকগুলোকে সেই চাবি ইউজ না করে এই মাস্টার কি দ্বারা ব্রেক করতো। এদের মোডাস অপারেন্ডি একটু ইন্টারেস্টিং। ওরা কোনো একটা গ্যাদারিংয়ে, কোনো একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে আইডেন্টিফাই করতো যেখানে কোন কোন বাইকগুলো পুরোনো টাইপের একটু, সেই বাইকগুলোকে যেগুলো ফার্স্ট জেনারেশন বা সেকেন্ড জেনারেশনের ইউজ করতো চাবি, সেই বাইকগুলোকে বা টোটোগুলোকে ওরা টার্গেট করতো। তো সেখানে ওদের ওই যে ফেক কিগুলো আছে, মাস্টার কি, সেগুলো দিয়ে খুলে নিয়ে চলে যেত। তার নামে কি কোনো রকম পুরনো ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে? কেস আছে, তার নামে কেস আছে, আসানসোলে কেস আছে, আমাদের ছাপনা থানাতে আগে একটা আছে কেস। কিছু আছে সেখান থেকে ওরা বিভিন্ন জায়গাতে পাস করে রিসিভার টাইপ। তাকে কি কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে? কোর্টে পাঠানো হবে, বেরিয়ে গেছেন, যাবে। আচ্ছা, ठीक है। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर के हुचुकडांगा में शनिवार को सौर ऊर्जा से चलने वाली जल परियोजना का उद्घाटन विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने किया। यह परियोजना 13 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। इस परियोजना से 40 परिवार लाभान्वित रहेंगे। परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि हुचुकडांगा इलाके के 40 परिवारों को अब तक जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र के निवासियों और मतदाताओं ने पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया था। तब मैंने यह ठान लिया था कि अगर मैं विधायक बना तो सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए पीने की पानी की समस्या का हल करूंगा, और आज वही किया। आगे भी जिन जिन इलाके में पीने के पानी की समस्या है, उन इलाके में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश से जल्द पानी की समस्या मिटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पानवेश्वर के गोविंदपुर हुचुकडांगा क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई थी। स्थानीय लोग कुएं के पानी को पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज यहां सौर ऊर्जा से चलने वाली जल परियोजना की शुरुआत होने जा रही है, जिससे लोगों में खुशी है। इस अवसर पर पानवेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी और जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे। जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग के अधिकारी ने कहा कि एक बोर होल सिस्टम में भूजल को शुद्ध करने और इसे पाइपलाइनों के माध्यम से घरों में आपूर्ति करने के लिए परियोजना की लागत 13 लाख रुपए है। पानी की समस्या के समाधान से स्थानीय लोग भी खुश हैं। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने झारखंड के दुमका से आर्थिक धोखाधड़ी कर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने झारखंड के दुमका से आर्थिक धोखाधड़ी कर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर दुर्गापुर ले आई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नवाज अंसारी, गुलाम हुसैन अंसारी, नजू अंसारी, अब्दुल खालिक अंसारी और हुसैन अंसारी के रूप में हुई है। शनिवार आरोपियों को दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश कर रिमांड पर भेजा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से दुर्गापुर सिटी सेंटर में किराए पर मकान लेकर रहते थे। किराए का मकान लेने के दौरान वे अपनी पहचान रसोई गैस सिलेंडर के डीलर के रूप में किए थे, लेकिन वे गैस सिलेंडर सहित कोई भी काम नहीं करते थे, जिससे घर के मालिक को उन पर शक था। इसी बीच शहरवासियों ने भी गिरोह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस कई दिनों से बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। शिकायत के आधार पर शुक्रवार की देर संध्या पुलिस ने दुमका से 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट एसीपी ध्रुव ज्योति ने बताया कि गिरोह सिटी सेंटर में किराए के मकान पर कई लोगों व उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर लाखों रुपए की रंगदारी मांगने का धंधा किया करते थे। सभी झारखंड के रहने वाले हैं। घटना की जांच शुरू की गई। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आने वाले
नगर निगम के चुनाव को देखते हुए विधायक और तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने शनिवार को दुर्गापुर के सिद्धू कानू इंडोर स्टेडियम के पार्टी कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें पार्षद MIC बोरो चेयरमैन भी उपस्थित थे। नगर निगम चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसे देखते हुए पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक विधान उपाध्याय ने शनिवार दोपहर दुर्गापुर सिटी सेंटर के सिद्धू कानू इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कार्यालय के सभी पार्षदों MIC बोरो चेयरमैन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें 2 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी भी शामिल थे। सभी पार्षदों की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान विधान उपाध्याय ने सभी MIC बोरो चेयरमैन से बातचीत की और उन्हें यह आदेश दिया कि वे पता लगाए कि राज्य में किसी भी जनता को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और उनकी समस्या को भी देखेंगे, ताकि उनकी भी समस्या का समाधान किया जा सके। तभी जाकर तृणमूल और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी और आपसी मतभेद को भुलाकर एक साथ मिलकर काम कर सकेगी। किसी के साथ अगर कोई समस्या हो रही है तो उन्होंने कहा कि वे लोग तुरंत हमें जानकारी दें, हम बैठकर समस्या का समाधान करेंगे। सबको एक साथ मिलकर ही काम करना होगा, तभी दुर्गापुर नगर निगम चुनाव, आसनसोल नगर निगम चुनाव और 2024 के चुनाव में हम लोग एक शक्तिशाली पार्टी उभर कर सामने आएंगे। ভোটার লিস্টের কাজ চলছে 1 নম্বর, আর 2 নম্বর হলে সামনে আমাদের কর্পোরেশন দুর্গাপুর নির্বাচন, সে কারণে আমরা আজকে কাউন্সিলর এবং আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টের সাথে আমরা একটু বসলাম সংগঠন নিয়ে। কি ধরনের কাজ হয়েছে সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা হলো? হ্যাঁ, পর্যালোচনা হয়েছে, কোথায় কী প্রবলেম আছে সেটুকুও বলেছে। এবার আমরা এটা প্রশাসনিক কাউন্সিলর মেয়রকে নিয়ে আমরা বসবো, মেয়র সাহেবকে নিয়ে বসবো। বলছি গত লোকসভা প্রত্যেকে ইট কাঠ থেকে আরম্ভ করে গাছ সব বেচে দিচ্ছে, প্রচুর অভিযোগ বেচে দিচ্ছে? হ্যাঁ, তোলাবাজি থেকে আরম্ভ করে সব। তো এই অবস্থায় কিভাবে রিকভার করবেন আপনারা? না, রিকভারি তো এইগুলো রিপোর্ট আমি পাইনি, আমি রিপোর্ট আপনার কাছে শুনলাম, নিশ্চিতভাবে এগুলো দেখবো। কারণ যারা কাউন্সিলর আছে, যারা ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আছে, তারা পার্টির নমিনি, পার্টির থেকে এসছে, অটোমেটিক পার্টির যেটা ডিসিপ্লিন আছে, পার্টির যেটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে চলবে। তবে রিপোর্টটা আমি পেলাম, নিশ্চয়ই দেখবো কোথায় কী আছে না আছে। একজন ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট 23 নম্বর, তারপরে কেউ বা ইয়েতে কি বলে পড়ে না, এগুলো আমি বলি, কিছু মানুষ যেটা আগেও ছিল, মানে কিছু মানুষ তো আছে, কিছু লোক থাকেই যারা কিন্তু এটাকে মিস ইউজ করছে, মানে চালাচ্ছে, সেগুলোকে আমরা কঠোরভাবে নেবার জন্য আমরা দেখছি। পার্টি যারা এতে আছে, পার্টিতে যারা দায়িত্ব আছে, তারা নিশ্চিতভাবে খারাপ কাজে জড়িত হবে না, থাকবে না। যাদের বিরুদ্ধে দেখবো আমরা আগামী দিনে এরা কি মানে টিকিট পাবে? আবার টিকিট পাওয়া না, এটা তো পার্টির ব্যাপার, এটা দিদির ব্যাপার আছে। টিকিট আমি দেওয়ার মালিক নয়, বা যে আছে কাউন্সিলর স্যার পাবার না, এটা দিদির ব্যাপার আছে, দিদি দেবে। আমরা জাস্ট সংগঠনটাকে দেখছি, যাদের পার্টি ভালো কাজ করছে সেই কাজগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চাইছি, এবং সেটা কাউন্সিলর ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টকে দিয়েই আমরা নিয়ে যেতে চাইছি। দুর্গাপুরে কিন্তু মানুষের কাছে সেই বার্তা যায়নি, তার থেকে বেশি ভুল বার্তা গেছে যে কাউন্সিলররা তোলাবাজি করছে, ইয়েতে জমি বেচে দিচ্ছে, কেউ কুপন ছাপিয়ে টাকা তুলছে, নানা রকম অভিযোগ। মানুষ মানে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যারা বদনাম করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পার্টি নিশ্চিতভাবে, যদি পার্টির দায়িত্ব আছে অথচ কোনো কাজে জড়িত আছে, নিশ্চিতভাবে পার্টি সেটা দেখবে, পার্টিকে একটা প্রুফ সমেত দিতে হবে। আর পার্টি অনেক কাজ করেছে, এটা কাউন্সিলর এবং বোর্ড, আমাদের যারা ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট যারা আছে, আমাদের যারা কর্মী নেতৃত্ব আছে, তাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাদের দায়িত্ব বর্তায় যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো যেভাবে মানুষের কাছে পড়েছে, মানুষকে দেয় দেখা। বলছি তৃণমূলের পার্টি অফিস তৃণমূল দখল করে রেখেছে। হ্যাঁ, তো এটা তো তৃণমূল পার্টি অফিসই থাকবে, অন্য পার্টি অফিস করে হবে। তাদের হাতে চাবি দিচ্ছে না, তারা দখল করে যখন ইচ্ছে খুলছে, যখন ইচ্ছে বন্ধ করছে। কত নম্বর ওয়ার্ড? 19 নম্বর ওয়ার্ডে আছে। আচ্ছা স্যার, দেখে নেবো আমি, তৃণমূলের পার্টি অফিস তৃণমূলে বসে আছে। এবার হয়তো কিছু ছোটখাটো যা প্রবলেম আছে দেখবো নিশ্চয়ই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बिहार के मधुबनी में तेज तर्रार पत्रकार बुद्धनाथ झा की हुई हत्या पर जामुड़िया प्रेस क्लब की तरफ से सिद्धू कानू मूर्ति के पास काला बैच पहनकर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। पत्रकारिता को गणतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आए दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहीं न कहीं कुठार आघात होता है।
अभी हाल में ही बिहार में एक ऐसी घटना सामने आई है। बिहार के मधुबनी जिले में एक युवा और निर्भीक पत्रकार बुद्धनाथ झा की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। बिहार के मधुबनी जिले में एक युवा और निर्भीक पत्रकार बुद्धनाथ झा की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई है। वो महज 22 साल की उम्र में ही सच को उजागर करने के लिए अपना बलिदान दे दिए। इसे लेकर शुक्रवार को प्रेस क्लब जामुड़िया की ओर से सिद्धू कानू मूर्ति के पास काला बैच पहनकर एक कैंडल जुलूस निकाला गया। ये कैंडल जुलूस सिद्धू कानू मूर्ति के पास शुरू होकर बाजार होते हुए जामुड़िया थाना मोड़ में पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में समर्पित हो गया। इस दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष गुरमीत सिंह और तारकनाथ मंडल ने कहा कि हमारे युवा पत्रकार बुद्धनाथ झा बिहार में फर्जी लाइसेंस के सहारे चल रहे नर्सिंग होम का पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन इस पर्दाफाश के पहले ही हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। इस घृणित कार्य को जिसने भी अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इस मौके पर प्रेस क्लब के सभी सदस्य उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का 62वां स्थापना दिवस शनिवार क्लब के सभागार में मनाया गया, जहां सभी सदस्यों की उपस्थिति में केक काटकर खुशी जताई गई। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का 62वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर लायंस क्लब के सदस्यों ने केक काटकर खुशी जताई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में लायंस क्लब इंटरनेशनल के जिलापाल अरुण दत्ता चौधरी, उप जिलापाल डॉक्टर एस.के. बसु, अब्दुल कयूम, डॉक्टर पी.आर. घोष, इंद्रजीत सिंह, राजकुमार कयाल, मंजीत सिंह, सुशील गनेड़ीवाला, रोहित खैतान मौजूद थे। इस दौरान अतिथियों ने लायंस क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लायंस क्लब ने अपने कार्यों की वजह से देश भर में नाम कमाया है। लायंस क्लब की तरफ से आई हॉस्पिटल, लायंस डीएवी स्कूल स्थापित की गई है, जो इस बात का प्रमाण है। इसके साथ ही रानीगंज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि हमें अपने अतीत को सम्मान करते हुए अपने अतीत के सामने ही उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत भी किया गया, साथ ही कई वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष हर्षवर्धन खेतान ने किया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल के पास अनन्या ऑटोमोबाइल का रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान साधन सिंह, समाज सेवी राजू सिंह भी मौजूद थे। इधर देखिए एक बार। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत शुक्रवार तृणमूल नेता और भुइयां समाज उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष सिंटू भुइयां के साथ पुलिस की हुई तीखी नोकझोंक के बाद शनिवार किसान मजदूर दलित आदिवासी संयुक्त मोर्चा और भुइयां समाज की तरफ से एक रैली निकाली गई। जामुड़िया ट्रैफिक थाना प्रभारी और तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ सह भुइयां समाज उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष सिंटू भुइयां के बीच बीते शुक्रवार को हुई नोकझोंक के बाद शनिवार किसान मजदूर दलित आदिवासी संयुक्त मोर्चा भुइयां समाज द्वारा जामुड़िया थाना मोड़ से जोड़ा तालाब से एक रैली निकाली गई। रैली थाना मोड़ जोड़ा तालाब से शुरू होकर बाजार होते हुए बाटा मोड़ के सिद्धू कानू मूर्ति के पास जाकर समाप्त हुई। बता दें कि पिछले शुक्रवार को जेके नगर मोड़ के पास तृणमूल नेता, अंचल के दलित गरीब कुचले वर्ग के लोकप्रिय नेता सिंटू भुइयां और जामुड़िया के ट्रैफिक थाना प्रभारी अनूप कुमार से वाहन चेकिंग के दौरान तीखी नोकझोंक हुई थी। ये मामला अब जातीय रंग ले लिया है। इसे लेकर भुइयां समाज उत्थान समिति के एक सदस्य पवन भुइयां ने कहा कि विगत शुक्रवार को जामुड़िया के ट्रैफिक ओसी ने जिस तरह से हमारे भुइयां समाज के प्रमुख नेता सिंटू भुइयां के साथ अभद्र व्यवहार किया है, वो बहुत ही गलत है। सिंटू भुइयां को हम लोग अपना आइकॉन मानते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यही चटर्जी, मुखर्जी और बनर्जी या अन्य सामान्य जाति विशेष का होता
तो क्या ये लोग इस तरह का व्यवहार कर पाते? लेकिन हम लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? उन्हें तत्काल सस्पेंड करना होगा। अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोगों का ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। पवन भुइयां ने आगे कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मौके पर शंभू भुइयां, राकेश पासवान, परशुराम भुइयां, अजय पासवान उपस्थित थे। যুথান সমিতির স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট কাল উনায় একটা ট্রাফিক ওসি যে ছিলেন অনুপ হাতি, ওনার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। ব্যাড হ্যাবিট যে থাকে অফিসারদের, ওই ব্যাড হ্যাবিট দিয়ে কথা বলেছে আর ছোটো কাস্ট দিয়ে পরে ছোটো কাস্ট কমিউনিটিকে দিয়ে পরে গাল দিয়েছে। বলছে মনমোহরজি চলবে না, বলছে নাটকগিরি চলছে, নাটকগিরি চলবে না। এটাই যদি আমাদের দলিত সেনা নেতা না হয়ে পরে যদি জেনারেল কাস্টের কোনো চ্যাটার্জি, মুখার্জি, ব্যানার্জিদের বাড়িতে থাকতো কি এইভাবে কথা বলা যেত? মানুষের একটা রেসপেক্ট বলে জিনিস আছে, সেটা আমাদের পশ্চিমবাংলায় দেখতে পাচ্ছি না। যে আমাদের ট্রাফিক পুলিশ জামুরিয়ার করছে, এগুলো আমাদের দ্বারা বরদাস্ত হবে না। আমরা আজ দলিত সেনা থেকে আজ বাউরি, ভূঁইয়া, পাসমান সবই আমাদের এসটি এসসি সমাজ এসটি, যে সিন্টু ভূঁইয়া আমাদের দলিত সেনার আইকন আমরা মানি, ওনার আইডিওলজিকে মেনে পরে আমরা চলি। ওনার সাথে যদি অত্যাচার হয় তাহলে আমরা 1 ইঞ্চি পিছিয়ে থাকবো না। এখন কি আপনারা বিক্ষোভ মিছিল করছি। যদি ওই যে অনুপ হাতি যে ওসি আছেন, ট্রাফিক ওসি, ওনাকে যদি সাসপেন্ড না করে তাহলে আমরা এটা টেলার আছে, পিকচার বাকি আছে। আমরা এর আগে স্বাভিমান র্যালি 55,000 পিপল স্বাভিমান র্যালিতে আমরা মানুষকে জোগাড় করেছিলাম 55,000। যদি আজকে আমরা যে 500 থেকে 600 বা 1000 লোককে নিয়ে পরে বিক্ষোভ করছি, দরকার পড়লে 50 লাখ দরকার করে পরে রোডে নামতে বিক্ষোভ করব। আপনার নাম পরিচয়? পবন ভূঁইয়া, স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমার পরিচয় দিন। पवन भुइयां, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, भुइयां समाज युथान समिति, पश्चिम बांग्ला सोशल वर्कर एकता टीम। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।